Welcome everyone. Today we'll see the difference between balance of trade and balance of payments. आज हम balance of trade और balance of payments के बीच का फर्क जानेंगे. Why do different countries trade with each other? No country in this world can produce everything that it needs within the domestic economy. So it has to import from outside. Two commodities, country A can produce at lower cost than country B. The second commodity, country B can produce at lower cost than country A. So it is mutually beneficial for both the countries to trade with each other. Comparative cost differences exist when a country can produce both the commodities at lower cost of production than the other country. But still, due to comparative cost differences in the production of the two commodities, David Ricardo showed that both the countries can specialize and still trade with each other to gain from foreign trade. जब हम foreign trade की बात करते हैं तो सवाल आता है कि इसकी जरूरत क्या है. कोई भी देश संपूर्णतः सारे जो अभाव है, सारे जो नीड्स है, अपने देश के अंदर उत्पादन नहीं कर सकता. अगर सोच ले कि कर भी सकते हैं तो डेविड रिकार्डो ने बताया था एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस के बारे में. एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंसेस जब एक देश एक सामान कम खर्चे पर उत्पादन कर सकता है और दूसरे देश दूसरा सामान कम खर्चे पे उत्पादन कर सकता है तो फायदेमंद रहता है अगर दोनों देशों के बीच दोनों सामानों का लेन देन हो जाए. कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस उस सिचुएशन में आता है जब एक देश दोनों सामान ही कम दाम में उत्पादन कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने थ्योरी द्वारा, अपने रिसर्च के द्वारा प्रमाण करके दिखाया कि जिस देश के पास कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज ज्यादा है जिस कमोडिटी में, उस पर अगर स्पेशलाइज करे और दूसरा देश जिसको डिसएडवांटेज है दोनों गुड्स में, लेकिन जिसमें डिसएडवांटेज कम है, उसमें अगर स्पेशलाइज करे तो दोनों देशों का फायदा हो सकता है. And these are the two main reasons why we have foreign trade. और जब foreign trade की बात बोलते हैं तो external sector आ जाता है, और external sector आने के साथ साथ जो इकोनॉमी है वो core sector इकोनॉमी बन जाती है. Once the foreign trade takes place, the external sector, the rest of the world sector, the foreign sector comes into being because the other three sectors operate within the economy, firms, households and the government. हमें balance of payments, balance of trade accounts की जरूरत क्या है? Why do we need these accounts, balance of trade and balance of payments? Every country, the researchers, the policymakers, the general public would like to know how much money we earned from the exports, how much money we paid to other countries for the imports. There must be a system of accounting to keep track of the economic transactions with the rest of the world. And hence we have balance of trade account and balance of payments account. हर कोई जानना चाहेगा हमारा जो लेन देन हुआ, कितना का सामान हम बाहर से लेके आए और कितना हम बाहर में बेच पाए. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स हमें इस दिशा में काफी कुछ जानकारी देता है. बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली. फिजिकल गुड्स, मर्चेंडाइज गुड्स, टेंजिबल गुड्स, whichever name we use. So the balance of trade is nothing but the difference between receipts from exports of goods and payments on imports of goods. Balance of trade सिर्फ जो goods है, सामान है, उन सामानों का लेन देन का अकाउंट्स रखता है. बाहर बेचकर कितना हमने कमाया और बाहर से लाने के वजह से कितना खर्चा हुआ, उसका एक समेटिक पिक्चर चाहिए तो वो हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड देता है. गुड्स, सामान के सिवा और काफी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं दूसरे देशों के साथ. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड
रखता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक बड़ा कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड से। So balance of payments includes all the transactions that a country has with the rest of the world during a given year. And when I am saying all the transactions, I mean economic transactions, the transactions that involve money. So we can say monetary transactions that takes place between the residents of a country and the rest of the world. The balance of trade account that I have just talked about relates to only this item, whereas balance of payments include, besides exports and imports of goods, many other items. These are also called non-factor services: banking, insurance, shipping, tourism. Investment incomes relate to the incomes that arise from past investments in the form of rent, interest, dividend, etc. These are also called factor incomes. Unilateral transfers are one-directional transfers. Without any direct contribution, these incomes are received, like grants in aids, gifts, donations, etc. Capital transfers increase the assets and liabilities or decrease the assets and liabilities of the residents of a country vis-a-vis the rest of the world. These three items together are also called invisibles. These are visible items, visibles, and these are invisibles. Whereas this item will go to capital account, which we will see in the next presentation. When we say balance of payments always balances, we say it in accounting sense, because BOP account also uses double entry bookkeeping system. And in double entry bookkeeping system, the credit and debit side always tally. Even if credit side is heavier than debit side or debit side is heavier than credit side, the way they write the account, ultimately in the end analysis, the credit and debit side match with each other. And that's why it is said that balance of payments always balances. But in economic sense, as I have said, the credit side is heavier than the debit side, or debit side is heavier than the credit side. As a result, the balance of payments can be surplus or can be deficit. They can be equal also, but that will be a sheer coincidence when in a particular year the credit and debit side match with each other. So payments एक बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ हम सामान गुड्स का रिकॉर्ड रखते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए होता है उसे रखा जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में उसके सिवा बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, पर्सनल रेमिटेंसेस, कोई बाहर से अपने घर वालों के लिए पैसे भेज रहे हैं या यहाँ पे कोई है अपने घर वाले के लिए बाहर भेज रहा है, तो ये सारे उसमें एंट्री होगा। उसी तरह से कोई कंपनी इंडिया में आई है, 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, तो अभी जो भी डिविडेंड मिलता है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी एंट्री होगा। इसे हम इन्वेस्टमेंट इनकम्स बोलते हैं। उसके सिवा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स जैसे ग्रांट्स इन एड है, डोनेशंस है, गिफ्ट्स वगैरह है, तो ये एक पक्षीय पेमेंट है। इसके बदले में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। कैपिटल ट्रांसफर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इफेक्ट करता है वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट में आता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट एक बड़ा कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड के मुकाबले में। और जब हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑलवेज बैलेंसेस, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए भी सही है, उस अकाउंट में भी ये हमेशा बैलेंस ही होगा, क्योंकि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर अकाउंट्स रखा जाता है। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आखिर में जब टोटल करते हैं हम डेबिट और क्रेडिट साइड, तो दोनों इक्वल होता है। जिस तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर कंपनी का देखते हैं और डेबिट क्रेडिट साइड अगर देखेंगे तो बैलेंस ही हो रहा है, लेकिन कंपनी को शायद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसी एंगल से हम कहेंगे
कि एक कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट अगर देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, तो डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल है तो हम बोलेंगे ऑलवेज बैलेंसेस। लेकिन शायद क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है तो बाहर से ज्यादा पैसा मिला। अगर डेबिट साइड ज्यादा हैवी है तो बाहर ज्यादा पैसा गया साल में। तो इकोनॉमिक सेंस में हम कहते हैं कि एक कंट्री का सरप्लस सिचुएशन हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, या डेफिसिट सिचुएशन हो सकता है। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है तो ये एक्सीडेंट है, ये प्योर एक्सीडेंट है कि एक साल में जितना हमने बाहर से रिसीव किया उतना ही हमने बाहर पेमेंट किया। तो आप समझ सकते हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ एक्सीडेंट, क्योंकि एक बड़े देश में हजारों लाखों लोग ट्रांजेक्ट कर रहे हैं बाहर के देशों के साथ, और उसमें अगर आखिर में अगर मिल जाए दोनों साइड तो इसे हम कोइंसिडेंस कहेंगे, इसको हम एक्सीडेंटल इक्वलिटी ही कहेंगे। सरप्लस मीन्स एक्सपोर्ट से जो रिसीट्स होता है, जो पैसा मिलता है वो ज्यादा है पेमेंट्स जो इंपोर्ट्स में किया जाता है। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड भी सरप्लस हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है, और बैलेंस इसको मैं बोला था कि ये प्योरली एक्सीडेंटल होगा। So balance of trade or balance of payments can be surplus when the receipts are more than payments, deficit when receipts are less than payments, balance BOT or balance BOP happens when receipts are equal to payments. अगर हमें एक देश के बारे में पता चलता है कि ये सरप्लस BOT वाला कंट्री है या डेफिसिट BOT वाला कंट्री है, जिसे हम ट्रेड सरप्लस कंट्री या ट्रेड डेफिसिट कंट्री भी बोलते हैं, उसी तरह से अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में हम कहते हैं कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है या सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, इसका मायने क्या है? व्हाट डू दिस सिचुएशंस मीन? इफ ए कंट्री हैज सरप्लस BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी बड़ा है और इसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी काफी अच्छी है और जो प्रोडक्शन आइटम्स है वो भी काफी अच्छे हैं, जिसकी वजह से देश बाहर बेच पा रहा है भारी मात्रा में, और इसी वजह से कंट्री को सरप्लस मिल रहा है। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी सरप्लस है तो पूरा इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है दूसरे देशों के मुकाबले, इसीलिए हम बाहर ज्यादा बेच पा रहे हैं। और डेफिसिट है तो बिल्कुल ही उल्टा है, इंडस्ट्रियल बेस कम है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, और इकोनॉमी भी दूसरे देशों के मुकाबले में, दूसरे काफी देशों के मुकाबले में इकोनॉमिकल हालत जो है वो पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हम बाहर के बाजार में इतना सामान नहीं बेच पा रहे हैं तीनों सेक्टर से, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी से। और इसी वजह से साल का जो अकाउंट है वो हमें बता रहा है कि हमने बाहर से ज्यादा खरीदा और देश के अंदर से बाहर हम कम बेच पाए। If a country has surplus balance of trade, it means the manufacturing sector is quite comprehensive and producing goods and services that the international market needs. Surplus BOP means the country has very strong economic position in the international market. Deficit BOP and deficit BOP signify complete opposite picture.